we do not want to do it harshly, aggressively, but we want to understand what the government's view is going forward. We want to understand what is their strategy. It is pretty clear that 4 stages of lockdown have not produced the result that the Prime Minister expected. Prime Minister and his entire advisory staff, including his top medical people, said that the disease would start to reduce towards the end of May. It's clear that the disease is not reducing, it is increasing. So we, with utmost respect, want to ask the Prime Minister and the government, now that we have a failed lockdown, what is their strategy going forward? What is their strategy as far as opening up India is concerned? What are the precautions that they're going to take to now curb this disease? How are they thinking about supporting our migrants? How are they thinking about supporting the state governments? How are they thinking about supporting small and medium businesses? We had great expectations. There was multiple press conferences about the package. Prime Minister said 10% of GDP. The reality is we have less than 1% of GDP being given, most of it in loans, hardly any cash giving to people. Congress party is running some states. We are giving cash to people. Directly, we are giving cash to farmers. We are giving cash to laborers. But we are not getting any support from the central government. And it is becoming extremely difficult for our states to function without adequate support from the central government. थोड़ा मैं हिंदी में बोल देता हूं. नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी. 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए. हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है. चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी. तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है. जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है. बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है. आपकी स्ट्रेटजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं. ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं. मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा. 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है. तो ये सवाल हैं. अब आप अपने सवाल जरूर पूछिए. Thank you, Rahul ji. In fact, there has been some problem at Randeep ji's end, so yes, I've just been told. Ji, so first question is from Kaushik Deka. He's senior editor with Times of India Today Group. Sorry, Kaushik, please go ahead. Ask your question. Unmute yourself. I can't hear you. Yeah. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Hello, Kaushik. Yeah, Mr. Gandhi, how are you? I'm okay. My question is, you have said that the lockdown has failed, and you have raised the migrants issue a lot. I saw your video also. So my question is, how did the government fail in handling the migrants, as you have mentioned? Because was it the timing of the lockdown?
And the second part is that now most of the migrants, they have returned to their villages. So that is also creating a health hazard for the local people. And at some point of time, they will have to come back also. So how do you think, as a constructive opposition party, how do you think the government should go ahead from now on? I don't want to go into why the government has failed. That is in the past. I don't want to sort of go into details about what could have been done, how it could have been done, who should have done it. I'm not interested. I am interested in right now. I am interested in what India is facing right now. And what we are facing right now is a failed lockdown, because the goal of the lockdown, as stated by the Prime Minister on national television, was that we will defeat the disease in 21 days. These are not my words, these are the words of the Prime Minister. Now, it is one lockdown, two lockdown, three lockdown, we're coming to the end of the fourth lockdown, and the disease profile is not reducing. So I'm just stating a simple fact that what we expected from the lockdown has not occurred. Disease profile is shooting up. In number of states, it is shooting up. What is the government thinking of doing going forward? The Congress party is in power in 3 or 4 states. We know what we are planning. We are very clear what has to be done in our states. We are giving money to poor people. We are giving food to poor people. We are managing the migrants. We are increasing our testing. We have a strategy. But states cannot function in a strategy without the national government. States are hamstrung if the national government is not behind states. So I have spoken to our chief ministers who have asked me to mention this. They have said that they are fighting a lonely battle and they are confident. They understand what has to be done. But what is the central government planning to do? That's the main question here. And that's again, we of course have a view. We put that view down. We said that injection of money is required. Aggressive movement on that front is required, but we were disappointed. But once again, I want to state, I do not want to get into the past that this is what the government did wrong, that's what they did wrong. No, I am interested in. To ask the next question. Swati, please come in. Hi, sir. This is Swati. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Hi, good afternoon. Yeah. So I wanted to ask you that, India has been facing a high level of unemployment even before the coronavirus pandemic began. So since this is a concern which has obviously deepened over the period of over this time, and because India is a country that is, in terms of its average age, it's a young country, do you think that India has made a mistake in terms of prioritizing health over the economic crisis that has affected a much larger number of people? You mean in the long term, or you mean right now during the lockdown? Yes, particularly right now, but also right now. in the country. I don't think that's a binary question. I don't think it is either health or economics. I think we are smart enough, intelligent enough to work a path through that will create a successful compromise between health and economics. So I don't see this as a on-off switch where you either solve the health problem or you solve the economics problem. I think there is a lot of nuance to that. However, India has been facing a very serious unemployment problem, and this is not new. This has been going on. You've heard of Make in India, you've heard of some of those initiatives, and they have not given the result that one expected for whatever reason. However, now there is a new element to this unemployment, which is that we were already struggling, and now suddenly we've hit this corona problem, which has multiplied this unemployment problem. As you can see, businesses were shut down. And I'm sorry to say this as a national leader, but many small and medium businesses are going to go bankrupt. The people who work for those businesses are going to become unemployed. And that is why we are raising again and again and again
that a injection of capital and injection of money to small and medium businesses is required. It will be fatal if we do not do it. An injection of money to the poorest 50% of India is required. It will be fatal if we do not do it. So yes, there is an unemployment problem, but that unemployment problem has now been compounded massively by the current crisis. And no, I do not think it is a choice between healthcare and economics. I think we are intelligent enough to work out a solution that looks after both. Thank you, sir. Next question is from Sanjay Mishra ji from Dainik Jagran. Sanjay ji, you can come in, please. Just one point. Just one Yeah. point. If I'm being asked the question in Hindi, I'll answer in Hindi. If it's a question in English, I'll answer in question in जी English. सर, which is fine, sir. हाँ, Yeah. संजय जी पूछिए. जी राहुल जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है मगर चेहरा नहीं. हाँ, आ गए. जी राहुल जी, एक और बड़ा सीरियस चैलेंज जो है वो देश फेस कर रहा है. भारत एक तरफ कोविड-19 से लड़ रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर भी देखें तो बहुत तनाव की स्थिति है. लद्दाख में चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही है और एक रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो भारतीय भूभाग पे आके डटे हुए हैं. दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी हमारा सीमा विवाद, एक नया जो है वो विवाद शुरू हो गया है. तो बाहरी सीमा के मोर्चे पे भी भारत एक बड़े सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है. तो आपको नहीं लगता कि सरकार की रणनीति यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के कटघरे में है? देखिए, जो बॉर्डर इशू है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है. नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. क्लियरली उनको, सरकार को बताना चाहिए. वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे. जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं. वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं. मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है. हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, और वो देश को नहीं मालूम. जी सर, धन्यवाद. हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ. इसमें सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं. जी सर. जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे इस पे टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा. अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट पोजीशन दे सकूंगा. In the middle of a meeting, Kabir, can I call you back in 10? No, sorry, you'll have to wait for your turn. Not like this. Can Adish Rawal from ABP come in, please? And please be brief with your question. Yes, sir. राहुल जी, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का. उसके बाद 12 फैब को आपने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था, और उसके बाद आपने कई बार ये भी कहा कि आर्थिक महामारी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन 24 मार्च को 54 डेज के बाद लॉकडाउन लगा. इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है टुवर्ड्स अपोजिशन, उसको क्या सरकार सीरियसली नहीं लेती है? देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है. हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है. मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं. मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है. मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं. और फरवरी मैं जो कहा था, उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है.
ये तो पहला चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है, इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। Thank you, sir. May I now request Kartikeya ji from Beyond to come in, please? Kartikeya ji, please ask your question briefly. Hello, Kartikeya, how are you? I'm fine, sir. Good afternoon. My question to you is that how has the government delivered on ground at the time of the lifting of lockdown, especially in context of the depressed people, poor people, daily wage workers? I've been speaking to quite a few daily wage workers, quite a few migrants. I've been having Zoom calls. I've been physically meeting them with all the social distancing norms. And they have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone. Many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words, whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh. I don't like those words. And they're saying those words more and more. कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया. भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए. क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं. बात हो गई, खत्म हो गई. मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं. अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है. अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है और देना चाहिए. Thank you, sir. Can I now go to Hindustan Times? Aurangzeb ji, please ask your question. Good afternoon. My question is, last week we saw politics being played over the buses for migrants in UP. We also heard BJP and Mayawati accusing Congress of doing politics over the issue. Then a statement comes from the UP Chief Minister that other states will now have to seek his government's permission if they want to hire workers from UP.
So what is your view on this? And the second is, can you repeat what you said about India, China, Nepal issue? In No, English, please? why would you want me to repeat it? I've already said it once, so I don't think it's necessary to repeat I it. said in English. Anyway. You want me to say it in English? No, I said anyway. You answer my first. No, sorry. You want me to say it in You want me to say it in English? Is that what it is? Yeah, I meant about I'll say it, India, I'll say China. India, China. I think I've already said the India-China thing. I'll answer your first question. Look, I think it's unfortunate. I think people are first Indian and then they belong to their states. And the decision on whether somebody goes to work from Uttar Pradesh to the rest of the country is not the chief minister's. It is the people of India's and the people of Uttar Pradesh. If a citizen of Uttar Pradesh wants to go and fulfill his dreams in Maharashtra or in Delhi or in Karnataka or anywhere else, he should have the right to do so. It is very unfortunate that the chief minister of Uttar Pradesh views India in such a way. These people are not his personal property. They are not the personal property of Uttar Pradesh. These people are Indian citizens and they have the right to decide what they want to do and they have the right to live the life they want to live. It is our job to support them to fulfill their dreams. It is not our job to say that you belong to me, you cannot go and work in Maharashtra. It's an absolutely absurd position. Thank you, sir. You want me to say a little bit about the China thing in English? Hello? Yes. Please. You would like Yes, me sir. to say a little bit about the China thing in English? Yeah, please. Yeah. Yes, please. I think the China, what we would like to see is some more transparency on what is going on. It becomes very difficult for us to have a position without understanding the facts. And I think the government should make clear to the people of India what exactly is happening on the border. We are hearing different stories. I don't want to go into conjecture, but it is important that the government of India makes it clear what is happening on the border so that people can understand and people can have a proper position. Thank you, sir. May I now request Archana from ANI to come in? Archana, please ask your question. Hello, Archana. Hello, sir. How are you? Sir, my question is, I'm fine. So my question is, लॉकडाउन का मेन लक्ष्य था संक्रमण को रोकना. तो क्या आपकी राय में 4 बार लॉकडाउन अभी तक हो चुका है, तो संक्रमण रुका है, क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ है सरकार को? ये तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ. प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा. कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है. अब बताइए आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है. लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी, जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा. तो ये सब चीजें अब देश को बताना है. शुक्रिया अर्चना जी. May I now request आज तक मौसमी जी is here from आज तक. मौसमी जी, one more thing. I don't think अगर आपने प्रधानमंत्री से भी पूछा कि भाई आपने 21 दिन का बोला था, 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट. वो ही एक्सेप्ट करेंगे कि जो उनका पहला प्लान था वो फेल हुआ, वो भी एक्सेप्ट करेंगे. मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि फेल हो गया, एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, मगर अब आगे बताइए क्या करना है. अब प्रधानमंत्री ने एक लो की अपनी पोजीशन अडॉप्ट कर ली है. पहले 2-3 बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला. अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना है. प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है. तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा. वो बैक फुट पे चले गए हैं. मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए.
Thank you, sir. May I now request Aaj Tak, Mosmi Singh? And sir, before I take that question, Mosmi ji, sorry, I want to point out to the group as also to Rahul ji. Siddharth from ANI is here. In his course of duty, he was tested positive for COVID, but hats off to him that he continues to be on duty. Despite that, kudos to him. I hope he's not infecting other people. No, sir, he's at home, but he's on duty and continues to work. Mosmi ji, please go ahead. राहुल, हम आपसे पूछना चाह रहे थे जो सरकार की पूरे इस मसले को लेके हैंडलिंग रही है, हाउ वुड यू रेट इट इफ इट्स ऑन अ स्केल ऑफ 10? क्या आप कितना मार्क्स देंगे और क्या एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है? I'm not a school professor that I'm going to rate the Prime Minister's performance on a scale of 1 to 10. Sorry, that would be inappropriate for me to do. मैं ये कह दूंगा कि कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं. सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे. 2-3 चीजें हैं. इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी नेशनल लेवल पे. ये सवाल है, मगर मेरा रैंकिंग देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा. राहुल, क्या कोई कामयाबी आप Mosmi ji, I'm sorry, I'll have to cut you in today. नहीं, sorry, let her ask. कोई कामयाबी? रणदीप, we can go on. Okay. Yes, राहुल, मैं कह रही थी कि क्या, जी मैं ये कह रही थी कि क्या कोई कामयाबी आपको लगता है इस पूरे 2.5-3 महीने में कोई कामयाबी रही है कुछ हैंडलिंग में या काबिले तारीफ रहा हो सरकार की तरफ से? वो जवाब नहीं दिया था. मैं आपसे ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं. जो हो गया हो गया. मैं आज की बात कर रहा हूं. मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है. कल क्या होने वाला है, और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है. स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं, मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है. और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें. थैंक यू सर. हिंदू से संदीप फूकन जी, कृपया अपना सवाल पूछिए. So my question is that, it's about transportation. You've seen that in a graded manner, the flights have restarted, domestic flights have restarted, but we are still quite some time away, perhaps, from opening up public transportations, regular train services. What, according to you, would be a safe mobility plan? I mean, if see, you have to understand my job. I am not an expert on safe mobility plan. That is, there are experts who will tell you this is how India should open up. For me to comment on whether we should open airlines, how we should open airlines, I'm not the expert. I don't pretend to be the expert. But what I do understand is that there are a couple of things at a high level that need to be done. When you're opening up, you need to open up with inputs from the state governments. You need to open up with inputs from experts. You need to open up in a systematic way, not in an ad hoc way. I clearly can see that our economy requires restarting, which means that it needs a money injection, cash injection immediately. So that needs to be done.
And I can clearly see that we need a strategy to make sure that in a non-lockdown situation, the disease does not run amok. I am worried, let me state it clearly. I am worried that in a non-lockdown situation, in a haphazard opening up, we will get a second wave of corona that will be extremely devastating. Thank you, sir. We have last 5 minutes of this press conference. Randeep ji, I'm going to ask Sanjay Trivedi Yes, from sir, I News have a 24 question. to come in, please. रणदीप जी, मैं भी हूँ. जी, मैं नोट कर रहा हूँ, आप कृपया चैट में लिख दीजिए, मैं वहां से सवाल पिकअप कर रहा हूँ. संजय त्रिवेदी फ्रॉम न्यूज 24. मंजरी जी, I'll come to you. Okay. Sanjay Trivedi from News 24. Sanjeev Trivedi, sir. Sorry, Sanjeev Trivedi, that's what I meant. By mistake, I said Sanjay. Yes, Sanjeev ji. Unmute करिए संजीव जी. राहुल जी, संजीव त्रिवेदी बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 से. इसके पहले के जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें आपने कुछ सजेशंस दिए थे और ऐसा लगता है जैसे कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन को तय करने का अधिकार राज्यों को मिले या बॉटम अप अप्रोच. उन सजेशंस को शायद स्वीकार भी किया गया सरकार ने, लेकिन सरकार के द्वारा मैं आपके सामने महाराष्ट्र का केस रखना चाहता हूं. महाराष्ट्र में कोई सजेशन काम नहीं आ रहा है. पूरे देश का 1/3 कोरोना का मामला आज की तारीख में महाराष्ट्र में है और आपकी सरकार की वहां हिस्सेदारी भी है. मुंबई में अकेले पूरे महाराष्ट्र का आधा से ज्यादा है. तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो कंट्रोल करना है केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की नहीं? क्या आपको लगता है कि राज्यों में केंद्र का इंटरवेंशन भी जरूरी हो सकता है? वहां राष्ट्रपति शासन की मांग भी शुरू हो गई है. राहुल जी, नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं. सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है. अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पूना देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया. तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द most aggressive places where corona is going to act. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. However, Maharashtra is struggling because of the nature of its connectivity. And Maharashtra is one of the most important assets, frankly, that India has. It is the center of business. So it requires full support from the government of India. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle, and I appreciate that fact. And so are many other states. And it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra. Thank you, sir. May I now request from CNN IBN Arun Singh to come in? Arun Singh. Yes. Arun ji, please go ahead. राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की, सॉरी अरुण, 1 सेकंड, वो लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा पीस मैं आंसर नहीं किया. ठीक है सर. So we just go back. I didn't answer the one section of that question. I just recalled. Okay. संजीव त्रिवेदी जी, प्लीज. मैंने पूछा था कि देखिए वहां राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और केंद्र के महाराष्ट्र के क्वेश्चन से पहले आपने एक और सवाल पूछा था. हमने पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि केवल केंद्र की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, आपने कहा कि मैंने सुझाव दिए थे और सुझाव उन्होंने बॉटम अप अप्रोच के बारे में आपने बोला था. और रेड, ऑरेंज, ग्रीन को तय करने के क्रम में देखिए हमारा रोल ऑपोजिशन का है. हम सुझाव देते हैं, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पार्टी में डिस्कशन होता है, हम
एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और फिर वो हम सामने लाके आपके सामने रखते हैं। हमारा कौन सा सजेशन सरकार ले वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, वो उनका डिसीजन है। और जरूर उन्होंने हमारे 2-3 सजेशंस, जो जोन की बात थी, उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया तो वो अच्छी बात है। मगर जो हमारे क्रिटिकल सजेशंस है, मेन नंबर 1 सजेशन, अर्थव्यवस्था को बचाना है, पैसा एकदम दो, वो सजेशन उन्होंने नहीं लिया, उससे थोड़ा हमें दुख हुआ है। बट वो उनका प्रोरोगेटिव है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया गरीबों को, न्याय योजना जैसी योजना नहीं दी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। ये तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। Thank you, sir. Arun Singh ji, can you very briefly ask last 2 questions now? I'm concluding the PC. Sorry, Arun, No for suddenly going. Sir, can you hear me? थोड़ा जोर से बोले। राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोले जरा। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको आपने अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूं कि आप गए थे माइग्रेंट लेबरर्स से मिलने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वो सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते, उनके कुछ बिलोंगिंग्स, उनके कुछ सामान, उनके कुछ बैगेज उठा लेते, उनकी मदद करते। तो अगली बार आप टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह आप ध्यान में रखेंगे अगली बार जब घर से बाहर निकलेंगे। नहीं, देखिए, मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है। मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। अगर दे दें, मैं चला जाऊंगा, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा मैं। मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है। मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुनें। काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं। और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है। ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। मंजरी जी फ्रॉम नवभारत टाइम्स, please come in and let that be the last question. I apologize to all those friends who I will not be able to accommodate. हेलो, नमस्ते राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। राहुल जी, मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र को लेकर वहां पे जो विपक्ष है उसने ये सवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सेना के हवाले कर दिया जाए। लगभग वैसी ही स्थिति कुछ गुजरात में है। गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल ये है राहुल जी, हमें गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट रूल मांगना चाहिए। नहीं, आप लगातार गुजरात की सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें। नहीं, आप लगातार क्या लॉजिक है?
आप लगातार ये वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है। मेरा कहना है कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन नहीं वहां तो पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए, ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, वो आपको जब चुनाव होगा वहां पे पता लग जाएगा। मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है, उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट रूम में जंप मार दें, वो अलग बात है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल राहुल जी ने आज लिए और ये इंटरेक्शंस का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आज हम नहीं ले पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार फिर नेक्स्ट इंटरेक्शन जो बहुत जल्द होगा उसमें हम वो सारे सवाल लेंगे। राहुल जी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स वो अब देंगे आपको। जैसा मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इस बार आपको चांस मिल गया, अगली बार और भी लोगों को हम चांस देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Indian Standard Time. As we had announced earlier, today we are back on this show with Rajiv Malhotra from the United States and Dr. Subramaniam Swamy from Delhi. You know both our speakers.